ورا اپنی نانی اور ماموں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں مر چکی ہے۔ گھر میں 2 ماموں ممانی اور ان کے بچے ہیں۔ ان میں آپس میں اچھے تعلقات ہیں، مگر بڑی ممانی سے پسند نہیں کرتی ہیں۔ عباد ان کا بیٹا ہے۔ آتش جو سراپا اسرار ہے، وہ لوگوں کو اپنی گفتگو سے زیر کرتا ہے۔ اس کے بے شمار حقیقت مند ہیں۔ BZ ایک ہوش لڑکی کو لے کر آتش کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ آتش اپنے اسسٹنٹ خاقان کے ذریعے ڈاکٹر کو بلاتا ہے۔ نانی ورا کو پڑھانے کی ذمہ داری عباد پر ڈال دیتی ہیں۔ لڑکی ہوش میں آتی ہے لیکن حواسوں میں نہیں، اپنا نام تک نہیں بتا سکتی۔ آتش کے گھر پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس کا نام سن کر BZ گھبرا جاتی ہے۔ آتش اسے پرسکون رہنے کا کہتا ہے۔ پولیس انسپکٹر امیر علی اپنے جونیئر فاروق احمد کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ آتش کو تربیتی ورکشاپ میں مدعو کرتا ہے۔ فاروق احمد تھوڑا تلخ ہے۔ عباد ورا کو پڑھانے بیٹھے ہیں۔ ورا بتاتی ہے کہ وہ کمبائن امتحان دے رہی ہے جسے ہر سبجیکٹ انتہائی مشکل لگتا ہے۔ فیروزہ کی بیٹی شونہ کی شادی ہے۔ اس میں بالی کا بھی نکاح کر دیا جاتا ہے۔ بالی انتہائی کم عمر ہے۔ شاکر فیروزہ کا بڑا بیٹا اپنے باپ کے حکم پر گھر تعمیر کروا رہے ہیں۔ ان کے والد بنگلہ دیش میں کاروبار کے سلسلے میں رہتے ہیں۔ فیروزہ کا چھوٹا بیٹا عامر بہت خودغرض ہے۔ وہ عیسیٰ سے بہت چڑھتا ہے۔ وہ ماں سے پیسے مانگتا ہے۔ انکار پر عیسیٰ کو والکونی سے الٹا لٹکا دیتا ہے۔ ورا کو سہراؤ سے ملنے کی خوشی اور گھبراہٹ ہوئی ہے۔ عیسیٰ سمجھتا ہے کہ وہ امتحانات کی وجہ سے پریشان ہے۔ BZ کو آتش فون کر کے اطلاع دیتا ہے کہ وہ ٹی وی آن کر کے دیکھے الائنہ سے متعلق خبر آ رہی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ الائنہ کی لاش اس کی فلیٹ سے برآمد ہوئی ہے۔ ورا پیپر دینے خوب تیار ہو کر جاتی ہے۔ اسے محتاط چھوڑنے جاتا ہے۔ واصلہ کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ اینا عامر سے کہتی ہے کہ عیسیٰ سے کہو کہ ایڈمیشن ٹیسٹ میں اس کے بھائی کو پاس کروا دے۔ سید صاحب کو جب سے عامر نے عیسیٰ کے متعلق بتایا تھا کہ وہ سگریٹ نوشی کرنے لگا ہے، سید صاحب بہت پریشان تھے۔ وہ فیروزہ بیگم کو واپس پاکستان بھیجنے کی بات کرتے ہیں۔ ورا جلدی سے پیپر ختم کر کے سیراب کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے۔ آتش چند روز کے لیے اسلام آباد جاتا ہے۔ خاقان دوسرے کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ خولا کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ فون لے کر وہ فون کرتی، دوسری طرف فون اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہ جواب نہیں دے پاتی، دوبارہ نمبر ملاتی ہے۔ اس وقت کوئی اسے آواز دیتا ہے۔ ابن سلیمان، اے شاہ کی تقدیر، اور تم نے کیا جانا کہ تقدیر کیا ہے؟ یقیناً ایسا رستہ جو دفعتاً مقابل نگاہ آتا ہے تمہاری، اور تم نہیں پاتے اس پر چلنے میں کوئی بھلائی۔ ایک پرخوار دشوار گزار اور تنگ سی راہ گزر، جو لا بچھاتا ہے کاتب تقدیر قدموں تلے تمہارے، اور چاہ کر بھی تم اسے تبدیل نہیں کر پاتے۔ سو روئے جاتے ہو اس پر، یہ جانے سوچے سمجھے بغیر کہ اس سے زیادہ مشکل راستہ کسی اور کے حصے میں آیا ہوگا جو یقیناً تمہارے لیے نہیں ہے۔ چہرہ بتا رہا ہے کہ پیپر بہت اچھا ہو گیا آپ کا۔ سیراب نے 2 گھنٹے بعد اسے کالج واپس کالج کے نزدیک ہی اتار دیا تھا، جہاں سے وہ پہلی ملاقات کے نشے میں دھوت گویا دھنک رنگ راہ گزر پر قدم دھرتی کالج کے صدر دروازے تک آئی۔ چھٹی کے وقت مفتاح اسے لینے پہنچ گیا تھا۔ سو اس کے ساتھ گھر واپس تو آ گئی، مگر گویا ذہن و دل وہیں اس جان لیوا کے پاس ہی کہیں چھوڑ آئی تھی۔ چاچا سارا دن اسی خمار میں رہی، اور اس وقت بھی عیسیٰ نے جب اس سے اظہار متعلقہ سوال پوچھا تو پیپر؟ اس نے سامنے بیٹھے عیسیٰ کی جانب سر ٹھوکے یوں دیکھا گویا اس نے سوال اردو میں نہیں بلکہ کسی ناقابل فہم زبان میں پوچھا ہوں۔ جی پیپر، آپ کا پیپر تھا نا آج؟ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے گویا اس پڑھائی چور کو یاد دہانی کروائی۔ اوہ ہاں پیپر، وہ چونکہ خجالت سے بولی۔ وہ تو بہت اچھا ہو گیا تھا سر۔ دیٹس گڈ۔ اسے جان کر حقیقتاً بہت اچھا لگا کہ ظاہر ہے محنت کی تھی اس پر۔ ذرا کوشچن پیپر دکھائیے، اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کو اگلی مشکل میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیوں سر؟ وہ پتہ نہیں کیوں گھبرا گئی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے۔ وہ اس کے چہرے پر درے گھبراہٹ کو حیرت سے دیکھ کر بولا۔ یہ لیجیے۔ وہ بیگ میں یوں ہی بجلی گھسڑا گیا سوال نامہ بادل نخاستے بیگ سے برآمد کرتے ہوئے بولی۔ پر مجھ سے کوئی سوال مت پوچھیے گا سر۔ وہ کیوں بھائی؟ پرشکن سوال نامہ کی لکیریں ہاتھوں سے دور کرتے ہوئے عیسیٰ نے تعجب سے پوچھا۔ کیونکہ جو لکھنا تھا بس میں نے لکھ دیا، وہ منہ بنا کر بولی۔ اب کچھ بھی ذہن میں نہیں۔ شاباش۔ بہت لطف آیا تھا عیسیٰ کو یہ سادگی بھرا سچا جواب سن کر، تب بھی مسکرا کر اسے شاباشی سے نوازتے ہوئے بولا۔ اس طرح پڑھتی رہیں تو بہت آگے جائیں گی آپ۔ تھینک یو سر۔ وہ اس کے جملے کی گہرائی میں اترے بغیر اپنی جان خلاصی کی خاص مطمئن لہجے میں بولی۔ خیر۔ اس نے سوال نامے پہ ایک تاریان ریکارڈر کا افتتاح کر کے میز پر دھرتے ہوئے اس بار سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ اب اگلا پیپر کب ہے آپ کا؟ پرسوں۔ یہ تو اس سے اچھی طرح یاد تھا۔ ہاں وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ دوسرا پرچہ یعنی دوسری ملاقات کس چیز کا ہے؟ شاید اسلامیات کا۔ کچھ گڑبڑا کر بولی۔ شاید؟ عیسیٰ نے سر نگاہوں سے اسے گھورا۔ دیکھتی ہوں۔ اس کی نگاہ سے مترعش گمبھیرتا دیکھ کر جلدی سے ٹائم ٹیبل فولڈر سے برآمد کر کے بولی۔ اوہ یہ تو انگلش کا ہے۔ اس پر غوراً ٹائم ٹیبل دیکھ کر بتایا۔ اور اس میں آپ کافی ماشاءاللہ ہیں۔ اس نے خالص اساتذہ والے لہجے میں میٹھی سی عزت افزائی کرتے ہوئے کہا۔ سو فوراً سے پیشتر نکالیے کتابیں۔ اے لڑکی، یہ کس سے فون کر رہی ہو؟ خاقان ریسیور اس کے ہاتھ میں دے کر بھوکے شیر کی مانند اس کی جانب لپکا۔ کسی کو نہیں۔ وہ جو اندر ہی اندر سوکھے پتے کی مانند کانپ گئی تھی، اپنی آواز کی لرزش پہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ تو پھر یہ ریسیور ہاتھ میں کیوں پکڑ رکھا ہے؟ وہ اس کے نزدیک پہنچ کر درشتی سے بولا۔
सर सफाई कर रही थी। सरदस्त वो एक जज्बाती लम्हे से गुजरी थी। मुस्तज़ाद खाकान का सफाकी तफ्तीशी अंदाज में वो हौसला करते करते भी बेतहाशकियों से रो पड़ी। अब मकारी से आंसू बहा रही है। वो उसे बेतहाशा रोते देखकर कदरनान बढ़ गया कि मुलाजमों से हद दर्जा सख्ती से पेश आना आतिश कदम में ममनू था। मैंने खुद तुम्हें रसीवर पकड़े हेलो हेलो करते देखा है। अब उस पर क्या कहती, फेल वक्त सलाम थी। मजीद कोई बहाना ना करने में ही मुजमिर थी। सो वो बिना कुछ कहे बस नीर बहाएगी। आतिश कदे के बाहर मसरूफ़ हूँ तो ये मत समझना कि मर गया मैं, तुम सब पर नज़र है मेरी। खाकान की ऊंची आवाज़ें सुनकर सारी नौकर माजा जाने की खातिर यहाँ जमा हो गए थे। सो लगे हाथों खाकान ने सबको लताना ज़रूरी समझा। चलो अब जाओ सब यहाँ से, जाकर अपना काम करो। ओ लड़की तुम, अब दीगर से खिताब करने के बाद दोबारा इसकी जानिब मुतवज्जह होकर तमीन बोला, सर आतिश को आने दो, तुम्हारा फैसला तो अब वही करेंगे। अब चलो जाओ यहाँ से, आइंदा मुझे फ़ोन के आसपास भी भटकती नज़र मत आना। बात सुनो, पेपर्स हो गए तुम्हारे? जहाँ कभी रहा तो तुमानियत की नज़र में हम वक्त गूंजा करते थे, आज वहीं उदासी की धुन पर वहशत रकसां थी। मगर वो फिर भी वहीं बैठा रहा कि बरसों पहले के एक मंजिल में खो चुका था। वो लाउंज में बैठा सोने की टेलीविज़न पर नीलाम घर देख रहा था कि तभी आमिर चला आया। उसके साथ वाले सोफे पर नीम दराज होकर इससे कुछ ऐसा दोस्ताना लहजे में मुखातिब हुआ, गोया दरमियान में कोई तलखी आई ही ना हो। जी, वो अगर वाकई भूल चुका था तो क्या, ईसा को तो सब याद था ना। वो अपनी तजरीबा आसानी कोई फरामोश कर भी कैसे सकता है। सो वो नज़रें स्क्रीन पर जमाए हुए स्पॉट लहजे में जवाबन बोला था, रिजल्ट आ गया? इंगराई लेते हुए अगला सवाल किया गया। अभी नहीं। कब तक आएगा? इसने गैर ज़रूरी दिलचस्पी लेते हुए इस्तफसार किया। इस माह के आखिर तक मुतवक्का है। बालों में उंगलियां चलाकर पुरसोच हंगारा भरते हुए अगला सवाल हाजिर था, नए दाखिले कब होंगे? वो यकीन अपने मतलब की बात पर आने के लिए तमहीद बांध रहा था। हो रहे होंगे, वो मशीनी अंदाज से जवाब देता गया। अच्छा। वो ज़ोर शोर से सर हिलाता या एकदम चुप ना हो बैठा। एक छोटा सा काम है तुमसे। जी कहिए। इस बात पर ईसा चूक उठा था। तुम्हारे स्कूल में लड़के का एडमिशन करवाना है 8वीं में, इसलिए तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। कैसी मदद? इसमें बात ही क्या पढ़ाना है इसको? इसने दानिश में यही वो मदद थी जो कि वो कर सकता था। पहले खुद तो पढ़ लो, तो मस्खर से बोला। फिर और क्या मदद कर सकता हूँ मैं इसकी? वो समझ नहीं पाया। एडमिशन टेस्ट क्लियर करवा सकते हो इसको? वो बोला। और ये मैं कैसे करूँगा? इसने होनकपन से पूछा। स्कूल में तुम्हारी कोई सेटिंग नहीं? वो बिला झिझक कह गया। कैसी सेटिंग? यार आमिर को अंदाज़ा नहीं था कि इसको छोटा इस कदर अहम होगा। तभी वो कुछ बदमज़ा सा होकर बोला, मेरा मतलब है कि नकल वकल की। मैं नकल नहीं करता। वो संजीदगी से बोला, हाँ हाँ जानता हूँ। वो जल्दी से बोला, मैं तुम्हारे दोस्तों की बात कर रहा था। मेरा कोई भी दोस्त ऐसा नहीं। वो तेज़ हुक्म दफ्तरी लहजे में बोला, तुम तो बेवकूफ़ हो। अब उसे गुस्सा आना शुरू हो गया था। तुम्हें क्या पता? जब मुझे कुछ पता ही नहीं तुम मुझसे बात ही क्यों कर रही हो? वो दोबारा तारिक अजीज़ की जानिब मुतवज्जह होता अजीब से लहजे में बोला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नेकी के इस काम में तुम भी हिस्सेदार बन जाओ। मतलब आगे के लिए इस नेकी बदी का तस्वर चुटकी बजाते बदल दिया था कि जाहिर है ये इसके दाएं हाथ का काम था। नकल करवाना नेकी का काम कब से हो गया? वो संजीदा रहना चाहता था, फिर भी उसे इस बात पर हंसी आ गई। यह दरअसल वो बेचारे एक हादसे की वजह से पढ़ाई में पीछे रह गया। वो लहजे में ज़बान भर की हमदर्दी से मोहकर बोला, साल ज़ाया हो जाएगा बेचारे का। है कौन? मेरे दोस्त का छोटा भाई है। वो लोहा गर्म करने के बाद जोरदार ज़रब लगाता हुआ चालाकी से बोला, अगर ये काम हो जाए तो दुआएं ही मिलेगी। देखता हूँ अगर कुछ हो सके तो। सैयद साहब और फिरोज़ से पता नहीं और कुछ फिर में उसे मिलना था या नहीं। अलबत्ता खिदमत खल्क का जज्बा उसे वाफिर मिकदार में मिला था। हाँ कोशिश करके देखो यार। वो इसकी असलत ज़ाहिर करते हुए बोला, और सुनो, पैसे वैसे चाहिए तो बता दिया करो, भाई हूँ तुम्हारा। ऐना बच्चों, आप यूरोप से कितनी प्यारी होकर आई हैं। ऐना गुज़श्ता एक माह से अपनी हनीमून ट्रिप पर थी। वापसी हुई तो थकन उतारने के लिए मेके कैंप के घर से चल गई, और इस वक्त लाउंज में विराजमान इन सब के लिए खरीदे गए छोटे मोटे तहफ़ ने थमाते हुए वहाँ के किस्से निकाले बैठी थी। लियाकत बेगम अब से कुछ देर कबल मगरिब की तंग कर होते वक्त का ख्याल करके अपने कमरे में जा चुकी थी। इनको तोहफे मिलने वाला गर्म ऊनी स्वेटर एहतियात इनकी अलमारी में रखने घर से आरफा भी इनके पीछे
चलो देखता हूँ। वो इसके इसरार पर पुरसोच से लहजे में बोला, पर अभी मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। हाँ हाँ बोलो। क्या कोई ऐसा शख्स है हमारे स्कूल में जो किसी को नकल करवा सके? इसने अपने दानिश में बहुत मोहतात और मुनासिब तरीन अल्फाज में इस्तफसार किया था, पर उस्मान के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। क्यों, क्या हो गया? खैरियत? वो ताजुब से बोला, ये तुम क्यों पूछ रहे हो? आमिर भाई के दोस्त के छोटे भाई का एडमिशन करवाना है, इसलिए इसने जल्दी से बताया कि वो कहीं और कुछ और न समझ तो ये कि नकल करवानी है इसको ताकि वो एडमिशन टेस्ट क्लियर कर सके। इसने सादगी से बताया तो आसमान का दिमाग घूम गया। व्हाट रबिश! वो सख्त नापसंदगी से बोला, यह सब तुमसे आमिर भाई ने कहा है? हाँ कहा तो उन्होंने ही है। वो कुछ खिसिया कर बोला, इन्हें इतनी गलत बात तुमसे करते शर्म नहीं आई? वो वाकई हैरत ज़दा था यार। वो ज़ाती लहजे में बोला, वो लड़का मुश्किल में है शायद इसलिए। किसी लिए भी वो उसकी वजाहत को सिरे से तस्लीम ना करते हुए बोला, मगर ये बात इनकी गलत है, सो गलत है। तुम्हारे इमेज बहुत अच्छा है स्कूल में, उसे किसी के लिए भी दागदार करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। इन्हें अगर अपने दोस्त की मदद करनी है तो तुम्हारा गलत तरीके से इस्तेमाल करने की बजाय इन्हें चाहिए सीधे तरीके से स्कूल जाकर बात करें, शायद इस तरह इसका काम बन जाए। बात उस्मान की बिल्कुल दुरुस्त थी, मगर आमिर तो अब मैं जाकर इनसे क्या कहूँ? इसने परेशानी से पूछा। तुम जाकर इन साफ साफ कह दो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और क्या कहना है? उस्मान कंधे उचका कर बोला, और ये बेसन का हलवा लो बाजी बहुत मज़े का बनाती हैं। क्या कहती हो, आज हो जाए लूडो की एक बाजी? पूनम की रात थी और एजाब ने मसनूई रोशनी से बेनियाज चांदनी में नहाए टहरिस पर इस्तिता इस समय वहाँ तमाम के मबहूत कर देने वाले हुस्न से ज़्यादा इसकी लाजवाब तन्हाई पर गौर करने में मुनहमिक थी। कहता भी अब अकब से बहुत दिन बाद एक शनासा सा जुमला सुना गया। क्यों? एक पल को उसका दिल बड़े ज़ोर से धड़का, मगर फिर अगले इंसान इसने नमियत भरे लहजे में इख्तिसार किया कि आज वरा के साथ खेलने से इनकार कर दिया। मैंने इससे पूछा ही कब? वो किसी इसके बराबर में आ खड़ा हुआ। रेजा बेचैन हो गई। तो जाकर अब पूछ लो। वो जख्मी से लहजे में बोली, नहीं यार रहने दो उसे। वो कतईयत से बोला, इसके पेपर्स हो रहे हैं। वो इसके तर्ज बदन में ये जवाब सुनकर अल्लाह उसे दहक उठा। वो दस्तयाब नहीं, इसलिए तुम्हें मेरा ख्याल आ गया। ख्याल आने की क्या बात है? वो इसकी तलमलाहट पर मुतहरा को बोला, हम पहले भी तो साथ खेलते रहे हैं, पहले की बात और थी, और अब क्या हो गया? वो इसी के लहजे में तुरंत बोला, कुछ नहीं कहना। वो बहुत कुछ चाहती थी, मगर जब्त करके एक बार फिर तन्हा से चांद को देखने लगी। रिजा क्या बात है? मुफ्ताजन सा ये इसकी जानब उलझन ज़्यादा परेशान निगाहों से देखते रहने के बाद बोला, मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ तुम कुछ बदली से दिखाई देती हो। कोई परेशानी है? अगर है तो तुम बिला झिझक मुझसे शेयर कर सकती हो। इसके लहजे में बेपनाह खुलूस के अलावा कुछ भी कुछ था जो क्या शेयर करूँ तुमसे? जो भी परेशानी है। परेशानी नहीं, मोहब्बत है तुमसे, और तुम काश के मन में भरने वाली हर बात कह देना इतना ही सहल होता जितना कि सोचना। कोई परेशानी नहीं है। वो रूठेपन से बोली, तुम मेरे बारे में खामखा फिक्रमंद मत हुआ करो। नाराज़ हो गई हो क्या यार? वो दाएं के कान की लो खुजाकर बोला, किस बात पर? उल्टा इससे पूछने लगी, वो जो शाम में मैंने तुम्हारी शक्ल सूरत के बारे में ठीक ही तो कहा था। रजन तेज लहजे में इसकी बात दरमियान ही से कतल करते हुए कहा, हमारे जैसे चेहरों से मोहब्बत कौन करता है? मोहब्बत चेहरे देख कर तो नहीं की जाती। वो मुतासिर लहजे में उसे समझाने की कोशिश करने लगा, हमारे चेहरों से होती तो है। वो ज़ैर खन सा बोली, खासकर दिलकश हसीन बेदाग चेहरों से। ज़रूरी तो नहीं। वो माने को तैयार ही ना हो रहा था, और उसे मनवा कर करना भी क्या था। सो बेदली से चेहरा को घर के अंदर से मोड़ते हुए बोली, खैर मैं सोने जा रही हूँ। यानी तुम मेरे साथ लूडो नहीं खेलोगी? तुम वरा के फारिग होने का इंतजार करो। बेतासुर लहजे में बोली, मैं इतनी आसान ही कि किसी का मुतबादिल बन जाऊँ। रिजा अपने कहकर आगे बढ़ गई, जबकि वो तादेर इसकी कहे अल्फाज की पास से सर वहीं खड़ा रहा। हेलो, इस वक्त किसी भी काम की हिम्मत खुद में ना पाती थी। सो खराबी तबीयत का बहाना बनाकर अपनी पनाह में चले। ख्याल था कि कुछ तनहा रहकर अंदर शनाख्त से टूट जाने वाली इस शय की मरम्मत करेगी कि जिसे दिल कहते हैं, मगर कहाँ? दिल के टुकड़े भला इतनी आसानी से कब जोड़े जा सकते हैं? और अभी तो ये हाल था कि टूटने वाला हर हिस्सा मजीद किची हुआ जाता था। हेलो, काश की आवाज़ मुझे सुनाई ना दे। इसने अपने हाथ सख्ती से कानों पर जमा कर ख्वाहिश की, मगर बेसूल। हेलो, मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर लिया अपने? सब कोई नाकाबिले बयान अजियत थी जिसकी शिद्दत से दूरियों को वो ज़मीन पर बैठती चली गई। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, मुझे बोलना था, बहुत कुछ बताना था, कहना था, सुनना था, मगर हाय वो लम्हा मेरे हाथों से फिसल गया, खो गया। वो मेरी खुशबख्ती की तरह शिद्दत गरिया से निढाल हो वरना के फर्श पर गिठरी बन पड़ी थी। वो खुश उम्मीदी का वो लम्हा वो वाकई इससे छूट गया था। क्या नज़र आ गया जबान की खाला को इस बेटन की तरह में जो रिश्ता पहनने को मरी जा रही हैं। थकन उतारने का अल्फाज अपनी जगह, मगर ऐना की आमद का असल मकसद ये था जो वो अपने कमरे में शरीफा के रूबरू बैठ कर अब इससे कुछ देर कबल बयान कर चुकी थी। वो चीज़ें सुनते ही शरीफा हत्या से उकल गई थी। हाँ नहीं तो औकात देखी है इसने अपनी जवान की शहजादियों की सी आन वान शान वाली बेटी के ससुराल में ब्याही जाती। अब ये बात तो मत करें माम। बैठ कर उनसे पुष्ट चुकाती ऐना उकतार से वालदा मायता को टूटती हुई बोली, नज़र तो जाहिर है सबसे पहले इसका पिछता हाशा हुसन ही आता है। हाँ, और ऐसा आता है कि सारी कर पर थर पड़ जाते हैं। वो भी बस आमेज़ तेज से बोली, अरे तो बताती ना कि तू यतीम है, मामू की दर पर पड़ी है बचपन से। खैर वो यतीम तो नहीं, ऐना बोली, वालिद मौजूद तो हैं इसके। अरे हटाओ। वो हाथ में जाकर बोली, ऐसी मौजूदगी भला किस काम की? बचपन से जो उधर छोड़ कर गया तो मन उस मारा कभी एक पैसे का तक करवादार ना हो। माँ इसकी लग नफसियाती कसम छोड़ दिया तो इसकी बेवफाई पर खुदकुशी। शश। ऐना जो इत्मीनान से बैठी हुई थी शरीफ इस बात पर चूम कर आ गई और इनके जहर उकलते लबों पर एकदम 2 उंगलियाँ रख दी। प्लीज़ मॉम, हर बात दोहराने वाली तो नहीं होती, आहिस्ता तो बोलें। ज़ाहिर है हर नवीरी पे हत्ता की माने वो अपने ख़ानदान की निक नामी
आदमी के हवाले से बेपनाह हसास थी इन दिनों। हाँ जी, दीवारों के भी कान होते हैं भलाई, तो फिर मोहतात रहने ही में पनाह है। लेकिन शरीफा आगे क्या कहना चाहती थी। दरवाजे की दूसरी जानिब अपनी किताब उठाने कर से आने वाली बारात जो दरवाजे पर दस्तक देने की बजाय इतनी देर से खड़ी अंदर जारी गुफ्तगू सुन रही थी, इस अधूरी बात पर सरापा इस्तरार बन गई। और छोड़ दें अब ये बातें, अंदर से एक बार फिर नहीं की सर्जिश करती आवाज़ उभरी, और ये बताएं कि मैं इस रिश्ते का क्या करूँ। जिब्रान कोई ज़रूरत नहीं, शरीफा कतियत से बोली, तो इनके इरादे कुछ और है, मगर क्या पता दौलत की जो बार तुम्हारी खाला सास के पास है वो इनके ख्यालात बदल दें, तो फिर क्या कह कर इनकार करूँ। एना परेशानी से बोली, कह देना कि हमें ख़ानदान में 2 लड़कियाँ नहीं देते। और सुनो, अपनी अब वासला के लिए कोशिश करो। वो जो मुफ्ताक का दोस्त था, इसका क्या हुआ। एना ने दिलचस्पी से पूछा। मैंने 2-4 बार उसे फ़ोन किया तो है, मगर कम वक्त ने जवाब ही नहीं दिया। वो सैराब से सख्त नाला दिखाई दे रही थी, तो आप मुफ्ताक से कहकर उसे डिनर पर बुलवाएं। एना सलाह दी। शरीफा की मकान आँखें चमकने लगी। हाँ, ये बात तो मेरे ज़हन में ही नहीं आई, चले मेरे आगे। एना मुस्कुरा के बोली, बस तो फिर आप कल ही कॉल करवा दें उसे, अभी मैं भी यहीं हूँ। मुलाकात हो जाए तो ज़रा मैं भी उसे अच्छी तरह टटोल लूँगी। इनके इरादे बहुत नेक थे, पर अल्लाह भीजे खामोशी से पलट गई। बाबू, तुम ख़त का जवाब क्यों नहीं लिखते। अबू को बत्ती आ गई थी, सो वो लाउंज से उठ के घर के हिस्से में चला है जहाँ अब वो जाने से ग्रेज़ किया करता था कि दिल फटने लगता था वो खाली पलंग देखकर, जहाँ कभी इसकी पूरी दुनिया और पूरी जन्नत नज़र के सामने वो करती थी, और आज वहाँ कोई नहीं था। इसके 2 जहां लुट चुके थे, तो क्या वो अब भी बयान न करता, और कुछ बयान बेआवाज़ भी तो हुआ करते थे। सो वो जबान खामोशी रोता कुरलाता तड़पता इसी पलंग पर आ लेटा जहाँ महसूस करो तो आज भी वही रूह को शांत करती थपकती लोरियाँ सुनाती खुशबू मौजूद थी, ममता की खुशबू। बोलो ना बाबू। जाने वाले वतन लौट आए थे हस्ब मामूल, 2-4 रोज़ तो मिलने के लिए आने वालों को तांता बंधा रहा। आज घर में कुछ सुनाटा सा था। सो फिर अपने लाडले के इनको पास बिठाकर मन में मचलता उछलता कूदता इन्हें हरासा परेशान करता सवाल इससे कर बैठी। और जैसे इस सवाल की गालिबन तवक्को ना थी, चुप रह गया। हम कुछ पूछ रहे हैं ना तुमसे बाबू। याजी रंग की सूती साड़ी में मलबूस फेरोज़ा के लहजे में इस बार ज़रा सी खौफ की थी। क्या लिखता। आखिर वो हमारी शर्मिंदगी की नज़र झुका कर बोला, अपनी जलील हरकत की माफ़ी मांग लेते। वो टपट कर बोली, वो हरकत जो मैंने की ही नहीं। वो रंजूश लहजे में बोला, माँ से झूठ बोलोगे। फिरोज़ा ने शाकी निगाहों से उसे देखा। क्या मतलब। बिलारत इसका पाँव ब्रेक पर जा पड़ा तो 140 की रफ्तार पर दफ्तर ब्रेक मतलब बेस्ट का मतलब तुम्हें नहीं पता। अपना डैशबोर्ड से टकरा जाने वाले माथा सिलाती हुआ सख्त बराफरोख्ता सी होकर बोली, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरे अलावा किसी को नहीं हो सकती। मैं होने नहीं दूंगा। ना जाने क्या कुछ था इस वक्त शराब के लहजे में जो वरा गुमसुम होकर बोली, तुम वाकई इतना चाहते हो मुझे। तुम्हें कोई शक है। बुरा मान कर बोला, हाँ। उसने गर्दन धीरे से अस्पाद में हिलाकर बोला, क्योंकि चाहत के दावेदार अक्सर छोड़ भी तो जाते हैं। तुम्हें किसी ने छोड़ा है क्या। सर ने गहरी बहुत अंदर तक उतर निकाह इसके चेहरे पर डाल गंभीरता से पूछा, हाँ। वो 2 दिन से शायद ऐसे ही किसी लम्हे की तलाशी, तभी तो अशक जैसी बहुत कीमती और बेश कीमत शय इसके सामने रखकर अपना आप यहाँ कर गई। कौन था वो। इस ट्रेन पर सराब की गिरफ्त सख्त हो गई। अगर जानदार होता तो इससे मैं दम घुटने से मर जाता। मेरा बाप। यक लहजा तवक्कुफ के बाद वो अपनी गिरफ्तारी पर छीन कर अपने हाथ उंगली की पूरों से छड़ती हुई बोली, ओह वरा। इस जवाब पर सहराब के तने असाब यक लख क्यों ढीले पड़ गई। वो कोई बहुत अहम मार का सर कर चुका हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। नहीं नगमा बहार। वो इसका मुहतरम चेहरा देखकर बहकते हुए बोला, तुमने तो मुझे पागल कर दिया है। ओह खुदा। वो इसकी पागल ने कहा, किताब न लाकर बात बदलने की गज से शोख लहजे में बोली, यानी मैं 3 दिनों से एक पागल के साथ राब्ते में हूँ। नहीं मेरी जान। मुसलसल थराता फ़ोन पतलून की जेब से निकाल कर नजर के सामने आने वाले नंबर को तक मुँह बनाता बोला, एक तुम ही नहीं तुम्हारी वो लेडी शरीफा भी। ओह हाँ। वो भी नाक चाह कर बोली, वो शायद तुम्हें डिनर पर इन्वाइट करना चाहती हैं। भाई बड़ी ही चिपको आंटी हैं। बेजार लहजे में बदतमीज़ी से बोला, मुझे डिनर पर इन्वाइट करना ही नहीं, बेवकूफ़ गधा समझ कर खेलना चाहती हैं। और तुम क्या चाहते हो। वेरा को लेडी शरीफा के बारे में सिर्फ के अल्फाज बहुत पसंद आए। तभी चमकती आंखों से देखकर इशारे से बोली, कभी तन्हाई में फुर्सत से बताऊंगा। एक तो इसकी बहुत कुछ बोलती निगाहें मुझसे महमूद लहजा। फ़ोन उठा लो इनको। वो बुखला को बोली, सारी शो की शरारत हवा हो गई थी। मुझे डिनर में कोई दिलचस्पी नहीं। वो खैरा से बोला, लेकिन अगर तुम कहो तो इस बहाने मैं तुम्हारे दीदार को आ जाना। चलो इन्हें बाद में तो रिंग बैक करता हूँ। वो फ़ोन ऑफ करके जेब में रखता वो बोला, ओ आज तो देर हो गई बहुत। अचानक ही वरा की निकाब निकलाई पर बंदी घड़ी पर तो वो चल बोली, अब चलो सहराब। हाँ चलो। वो अभी कुछ देर मजीद ठहरना चाहता था, मगर इस वक्त अल्सानी ने हाथ पर हाथ देकर बीच रास्ते में रोकी, इस गाड़ी को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। अमीर अली खान बस अभी आकर अपने दफ्तर में बाजमान हुए थे कि तभी फारूक अहमद चला आया और बड़ी बशारत उनके खसूर सुबह का सलाम पेश किया। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज बड़े अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हो यंग मैन। वो मेज़ की दूसरी जाने पूरी कुर्सियों में से एक पर उसे बैठने का इशारा करते हुए जवाबन खुश दिली से बोले, सर बात ही कुछ ऐसी है। पुरजोश लहजे में बोला, वेरी गुड। अमीर खान ने मुतानत से गर्दन हिलाई, कोई नया केस तो पुराना ही है, मगर डेवलपमेंट नहीं है। ब्रीफ करो। वो हमतन इसकी जाने मतवजा होकर बोली, ये देखिए सर। वो अपने फ़ोन एक फ़ाइल खोल कर दिखाते हुए पितौले से लहजे में जल्दी बताने लगा। मुबैना खुदकशी करने वाली स्मार्ट और बिजी के माबैन खुशनियों से झगड़ा चल रहा था। सो व्हाट। वो इसकी फ़ोन पर खुली फाइल बरस लगा डाकर फ़ोन पर उसे वापस करते हुए संजीदगी से बोला, इस तरह की कैट फाइट्स तो शोबस में मामूल है, और इस तरह की फाइट्स के नतीजे में कई मॉडल्स और अदाकारें खुदकुशी करती हैं। वो तब मलूज रखते हुए तंजन बोला, कहना क्या चाहते हो। अमीर अली खान की चेहरे गुलशन से मुतरश हुई, जो आप समझ कर भी समझना नहीं चाह रहे सर। वो बेबसी मुतासिफ लहजे में बोला, मेरी गिट फीलिंग कह रही है कि ये खुद का
خودکشی نہیں قتل ہے. قتل علی خان نے اس بات بے طرح چوں کر اس کی جانب دیکھا تھا.